Hello everyone, welcome back. And today we are going to start the lecture 3, the remaining part of the lesson, the story of the village of Palampur of the economics. Students, you must have studied the previous videos because if you have not studied them, you are not going to understand anything about here in this lecture. So that is why the previous two videos watching is mandatory for you all. And here I am presenting you the recap also of the previous video. I gave you few of the questions at the end of every video for your exercise and for your homework. So those activities through which goods and services are produced is known as production. This is I am telling you the recap of the previous video. Land land, labor, capital and human resource are the major factor of production. Then the multiple cropping, modern farming methods, and I told you the various how the land production can be increased, different types of farmers, different types of crops, and the different types of farming methods I told you. So I hope that you everyone have studied that, and if you have not studied yet, kindly go through the videos and study them very well. It is the very important chapter in economics and it is the easiest too. It's not too difficult to learn it. You can understand it very easily, and for any of the problem you can contact me also at any time. There is no issue. Let's move toward in the previous video I told you the four major factors of production, and I also explained you land as a major factor of production. Why land is a major factor of production? In that I told you multiple cropping and the modern farming methods. Relating to that, now I am proceeding towards the Green Revolution, which is a revolution started by the M.S. Swaminathan in 1896 to increase the land and agricultural production by using modern farming methods. See students, we are studying about a village. This is the story of the village of Palampur, and this revolution is being started by the government so that everyone can adopt it. The Green Revolution, it is not mandatory but it is a plan of the government so that they can increase the land production, and as Palampur is a developed village, that is why they use this Green Revolution method in their village. So this revolution emphasized to use HYV seeds, modern tools, chemical fertilizer, pesticides, high irrigation, etc. It was not successful in all over the India, and still it is running in our country, and it is not successful in all over the country because Green Revolution took lots of efforts and it is very expensive. Poor farmers cannot afford it, and many of the farmers in our country are poor. If we talk about the Palampur, I told you that there are three types of farmers: large, medium, and small. So, the large farmer in Palampur they can use it. They used it, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है. And the medium and the poor ones, they are doing the farming as per their traditional methods. It helps in increasing the production of wheat and rice. If we are talking about the whole India, तो पूरे इंडिया में इसकी जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा जिस पर एम्फोसाइज हो, जिस पर इसका इफ़ेक्ट हुआ, दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ wheat and rice, and the places are the Uttar Pradesh, Punjab, Haryana and the Kerala. So only these of these crops gives the good result after this green revolution when the farmers adopted it. But this green revolution have some drawbacks also, disadvantages. Why it was not successful, क्यों इसके disadvantages भी हैं. So many problems are there in this green revolution, that is why it is not successful in all over the country. Drawbacks: first drawback is
that it is very expensive and poor farmers cannot afford it. And in our country, most of the farmers are poor. There are less large farmers in our country, medium and small farmers are more. That is why this method cannot be adopted everywhere. So many other problems are also there, I will be telling you. Second problem is the depletes the groundwater level. As I told you, modern farming requires high irrigation. बहुत ज़्यादा इरीगेशन की ज़रूरत होती है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है. If any of the village is not having that much of water, there it cannot be done. वहाँ ये हो ही नहीं सकती है. Secondly, wherever water is available, then it depletes the ground water level, क्योंकि ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाता है. एंड ड्यू टू दैट जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो दिन पर दिन इसकी वजह से घटता जाएगा. तो अगर हम हर जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आर अंडरग्राउंड वाटर लेवल विल बी डिप्लीट. तो ये उस एरिया के वाटर लेवल को बहुत ही तेज़ी से घटाता है. नेक्स्ट वन इज़ दी इट इंक्रीजेज द लैंड पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन ड्यू टू द यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्ट. इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फार्मर्स यूज्ड केमिकल फर्टिलाइज़र एंड द पेस्टिसाइड्स. इनका इफ़ेक्ट होता है लैंड पर बहुत ज़्यादा. इट रिड्यूसेस द सॉइल फर्टिलिटी. ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं. एंड आफ्टर एवरी हार्वेस्टिंग, हर हार्वेस्टिंग के बाद हम जब नए खेती करते हैं जब फार्मर्स, और उसमें दोबारा से फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, तो ये डे बाय डे आफ्टर एवरी हार्वेस्टिंग वेन एवर अ न्यू सीजन केम, ये सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करता रहेगा. एंड देन द सॉइल कैन बिकम द बैरन ऑल्सो. It also increases the land pollution. Land pollution क्यों? Chemical fertilizer. The word chemical, you know, the different various types of chemicals are used, and chemicals are not too healthy for the land and for the soil and for the crops and for even for us. आप सोचिए, all of you have took the medicines whenever you feel ill. हम लोग medicines लेते हैं, right? यू कैन सी कि मेडिसिन्स की जो टैबलेट्स होती हैं वो कितनी छोटी छोटी सी होती हैं, कुछ बड़ी भी होती हैं, कुछ छोटी छोटी सी होती हैं. और वो एक छोटी सी टैबलेट जो है वो हमको कितना इफ़ेक्ट करती है. हमारी कोई भी बीमारी फटाफट से उससे सही हो जाती है ना. और वही एक छोटी सी टैबलेट अगर आप बिना किसी डिज़ीज़ के खा लें, बिना किसी पर्टिकुलरली आपको पता ना हो कि आपको कौन सी मेडिसिन खानी है और आप उसको खा लें, तो वो आपको कितना ज़्यादा हार्म कर सकती है. तो हेयर इज़ द सेम थिंग कि केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ भी जो है वो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में किया जाता है. अगर वो क्वांटिटी ज़्यादा या कम होती है उससे क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. अगर ज़्यादा होती है, हम कंटिन्यूसली केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं फार्म्स में, तो ऑब्वियसली वो जो लैंड है वो ख़राब हो जाएगी, क्रॉप भी ख़राब होगी और सॉइल जो है वो बैरन हो जाएगी. दिस इज़ द रीज़न. दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. तो इट कैन बी डन इन द लार्ज फार्म्स ओनली. देखिए, इट इंक्लूड सो मैनी मॉडर्न टूल्स. इसमें बहुत सारे मॉडर्न टूल्स का यूज़ किया जाता है. अब ये मॉडर्न टूल्स में देयर आर सम स्मॉल टूल्स बट देयर आर सम लार्जर टूल्स ऑल्सो. अ वेरी कॉमन टूल आई एम टेलिंग यू, दैट इज़ द ट्रैक्टर. आई होप ट्रैक्टर आप सभी ने देखा होगा. वेरी वेल नोन मशीन है जिससे कि इसका यूज़ क्या होता है. थ्रू द ट्रैक्टर द टिलिंग ऑफ लैंड इज़ डन. ज़मीन की खुदाई की जाती है उससे. टिलिंग करते हैं जिससे कि टिलिंग करने के बाद उस लैंड में सीड सॉ किया जाता है, बीज बोए जाते हैं. तो ट्रैक्टर तो एक बहुत ही कॉमन सा टूल है. अब सपोज़ अ पर्सन इज़ हैविंग अ लैंड, the most of the poor farmers and the small farmers are having very small pieces of land. And suppose if a farmer is having a land at the size of your room, आपका जितना बड़ा रूम है, आपके उतने बड़े रूम के बराबर का अगर किसी के पास में लैंड है जिस पे वो फार्मिंग करता है, तो सपोज़ इज़ द ट्रैक्टर इज़ नीडेड ओवर देयर. क्या इस छोटे से रूम के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत है? नहीं. सेकेंड थिंग इज़ दैट फार्मर इज़ ऑलरेडी पुअर पर्सन, तो वाई ही इज़ गोइंग टू बाय द ट्रैक्टर? ही विल नॉट बाय इट. वाई? क्योंकि उस
लैंड में उसको ट्रैक्टर चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. तो द प्रॉब्लम इज़ हेयर इट कैन बी डन इन ओनली द लार्ज फार्म्स, जिनके बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, जो लार्ज लेवल पर फार्मिंग करते हैं, वो मैनुअल लेबर से काम कराएंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है. लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर लगेगी उनको, बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ेगा. उन बहुत सारे लोगों को पैसे देने से अच्छा है वो अपने लिए कोई मॉडर्न मशीन, एक बड़ी सी मशीन को ले लें, वो एक ही पर्सन चलाकर उससे सारे काम कर सकता है. तो दिस इज़ द डिफरेंस, दैट इज़ वाई this farming can be done only in the large farm. Most probably it can be done in the large farm lands. It also causes the water pollution. वाटर पोल्यूशन का भी ये एक रीज़न है, ये वाटर पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं. वाई सो? ड्यू टू द केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स. ऑल ऑफ यू नोज दैट सॉइल हैज़ अ क्वालिटी टू ऑब्जर्व द थिंग्स. चीज़ों को, पानी को, कोई भी लिक्विड चीज़ें होती हैं उसको ऑब्ज़र्व करने की क्वालिटी जो है वो सॉइल के अंदर होती है. तो व्हेन वी यूज़ द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र इन द लैंड एंड देन वी डू द इरिगेशन, फिर उसके बाद जब उस पर पानी लगाया जाता है तो वो लैंड जो है, सॉइल है, उस वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है. अलॉन्ग विद दैट दोज केमिकल्स एंड द पेस्टिसाइड्स थिंग्स गोज़ डाउन टू द वाटर, ग्राउंड वाटर तक वो चीज़ें पहुंच जाती हैं. सो इट कॉजेज़ द वाटर पोल्यूशन. सेकेंड थिंग इज़ वेन एवर द रेन अकर्स, जब भी बारिश होती है तो वो अपने साथ में पानी को बहा कर लेकर जाती है, मिट्टी को. एंड दैट सॉइल व्हेन वी मिक्स द फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स इन द फार्म्स, वो सॉइल उसके साथ में बह कर जाती है एंड वेर एवर इट गोज़, वो किसी नदी में, किसी पॉन्ड में जाकर मिक्स हो जाती है. देन इट क्रिएट्स द वाटर पोल्यूशन. मोस्ट ऑफ द टाइम इट क्रिएट्स द अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन. ज़्यादातर जो है ये अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन को इंक्रीज़ करती है. It can wiped out with one devastating disease. These chemical fertilizers and pesticides can create a huge disease for us. That is why we people try to use the natural manner to keep our crops healthy and keep ourselves healthy. So that is why this green revolution is not successful in all over the India, because so many issues are there, so many problems are there. It has so many drawbacks also, but some of the farmers, some of the areas has used it, as I told you that in West Uttar Pradesh and in Punjab and Haryana, the people used it because there the farmers are rich, they are having the large land, and the government of Punjab and Haryana totally emphasized on the increase to increase the production of the agriculture only. उन्होंने वहाँ पे जितनी भी लैंड है वो किसी और पर्पसेस में यूज़ ना करके सिर्फ एग्रीकल्चरल पर्पस में ज़्यादा यूज़ करी है. दैट इज़ वाई पंजाब एंड हरियाणा गिव्स द हायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ एनी ऑफ द क्रॉप. सबसे ज़्यादा जो पूरे हमारी कंट्री में वीट की प्रोडक्शन होती है वो पंजाब और हरियाणा से होती है. दिस इज़ द रीज़न दे आर यूजिंग द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. दैट इज़ वाई they are the people. So it may gives the good result and it may gives the bad result. Everything has a good and the bad prospects. दोनों ही चीज़ें हर चीज़ में होती हैं. Next one, moving towards the next factor, that is the labor. The another major factor of production, labor. Labor means the person who works on the field, on the lands, in industries, in doing any of the business, any kind of thing, whatever their people, मतलब कोई भी काम है, किसी भी तरीके का काम है, there the main thing is that the labor is required. Somewhere is high labor required, somewhere the low labors are required. If we talk about the field, farming करने के लिए लार्ज फार्मर्स दे यूज़ टू हायर द अदर पर्सनस, वो दूसरे लोगों को हायर कर लेते हैं अपनी फील्ड पे काम करने के लिए. मीडियम एंड स्मॉल फार्मर्स यूजुअली डू देयर फार्मिंग देयर ओन, वो खुद ही अपनी ज़मीनों पर खेती बाड़ी का काम करते हैं. सो द लेबर इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर. विदाउट लेबर इट कैन नॉट बी डन. बिना लेबर के किसी भी तरीके की प्रोडक्शन नहीं की जा सकती है एट एनी हाउ. इफ़ यू से कि हम सब जगह सिर्फ मशीन्स लगा लेंगे, विल पुट machines everywhere and will do all the work with them, no, it's not possible. Who is going to run the machine?
इवन फॉर द मशीन वर्क द अनदर प्रॉब्लम इज़ कि जब तक वो पर्सन उस मशीन को चलाना नहीं जानता होगा, जब तक उसको यूज़ करना नहीं जानता होगा, तब तक वो मशीन भी हमारे लिए यूज़लेस है। देखो, सी, इफ़ यू हैव बाइड अ लैपटॉप, a phone or any of the new gadget, if you don't know how to use it, that laptop, that phone and that gadget is useless for you. आप उससे अपनी ज़रूरत का कोई काम नहीं कर पाएंगे. It's just the waste of money. In the same way, here the two types of labors, skilled labor and the unskilled labors. Again the same thing I am telling you, as I told you, that if you have bought any of the gadget, laptop, mobile thing, machine आपने कोई भी ली है, and if you don't know how to run it प्रॉपरली, अगर आप उसको चलाना नहीं जानते हैं, तो दैट थिंग इज़ यूजलेस फॉर यू. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्किल्ड लेबर एंड अ अनस्किल्ड लेबर. स्किल्ड लेबर जो है वो दे टुक द एजुकेशन, दे टेक्स अ डिप्लोमा और डिग्री टू इन्हांस देयर स्किल. किसी भी स्किल में अगर वो लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सम फॉर एग्जांपल इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड इन द कंप्यूटर एंड इफ़ यू थॉट कि आप जो है सिर्फ दूसरों को देख कर कंप्यूटर हैकिंग करना सीख सकते हैं, नॉट पॉसिबल. इट कैन बी डन ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू इन्हांस योर स्किल. आप अपनी स्किल को, जब तक आप उस कंप्यूटर में कोई डिग्री, डिप्लोमा, कुछ अच्छी एजुकेशन अपनी स्किल को और इन्हांस नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. एंड अनस्किल्ड पर्सन कैन रन इट इन अ नॉर्मल वे. जिसको नहीं आता है वो एक कंप्यूटर का यूज़ एक नॉर्मल वे में तो कर लेगा, लेकिन किसी अच्छे पर्पज़ के लिए दे कैन नॉट डू the work in that manner. So that this is the difference between the skilled and unskilled labor. Skilled labor and unskilled labor, in our country most of the labor is unskilled. हमारे यहाँ पर ज़्यादातर unskilled labor है. See again, one more example I am giving you of the farmers. Most of the population of our country is involved in the agricultural activity, but those farmers are not the skilled person. वो स्किल्ड नहीं है. क्यों? उन्होंने कोई फार्मिंग की पढ़ाई नहीं करी है, ना ही उन्होंने कुछ करा है. वॉट एवर दे हैव लर्नड, उन्होंने जितना भी सीखा है वो सिर्फ अपने पुराने पूर्वज, अपने एंसेस्टर्स लोगों, एक दूसरे को देख कर सीखा है कि फार्मिंग कैसे की जाती है. एंड दिस इज़ द रीज़न देयर फार्मिंग प्रोडक्शन इज़ लेस. ये रीज़न है कि उनकी फार्मिंग का जो प्रोडक्शन है वो लेस है. बट द पीपल हु हैव टेकन द स्टडी एंड स्टडीड अबाउट द लैंड, सॉइल, जिसने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है कि कहाँ पर हम अच्छी फर्टिलिटी कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हैं, दैट पर्सन बिकम्स अ स्किल्ड फार्मर. तो वो पर्सन जो है एक स्किल्ड फार्मर बन जाएगा. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पर्सन. एंड so that is why the labor is very important for डूइंग द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द थिंग. किसी भी चीज़ को बनाना हो, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना हो, अ लेबर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट. विदाउट लेबर इट कैन नॉट बी डन. एंड एज द लेबर इज़ इम्पॉर्टेंट, in the same manner capital is also important, the another factor of the production. I told you the four factor: land, labor, capital and human resource. Here we are studying the third factor of production, that is the capital. Capital जो है, what is the capital? In a very normal terms, बहुत ही सीधी सरल शब्दों में इसको कहते हैं money. And without money nothing can be done. None kind of production or services can be done without the capital. किसी भी, अगर कोई, आप सोचिए आप कहीं पे वर्क करने जाते हैं, if you are not getting money for that, you are not going to do the work. आप कुछ काम करना चाहते हैं, if you want to open your own business and if you are not having the capital, you cannot do that. If the farmer wants to do
द हायर प्रोडक्शन, वो अपनी अच्छी प्रोडक्शन करना चाहता है, बट दोज फार्मर्स आर पुअर, दे डोंट हैव मनी, दैट इज़ वाई देयर प्रोडक्शन इज़ लो. This is the reason. तो कैपिटल इज़ फर्दरली डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज हेयर. कैपिटल जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. वन इज़ द फिक्स्ड कैपिटल एंड अनदर वन इज़ द वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्पेंड इट वंस. फिक्स्ड कैपिटल ऐसा होता है जिसको एक बार खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर एक बार हम किसी चीज़ को बाय कर लेते हैं और वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है. टाइम टू टाइम उसकी रिपेयरिंग या किसी प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए बस हमें उसमें मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है. दैट इज़ द फिक्स्ड कैपिटल. फॉर एग्जांपल, if we talk about the farmers, when the farmers के लिए जो फिक्स्ड कैपिटल है दैट इज़ द लैंड. इवन फॉर एवरी वन, फॉर द एनी ऑफ द पर्सन, चाहे वो इंडस्ट्री हो, वट एवर बिजनेस, शॉप, हाउस, कंस्ट्रक्शन, एनी ऑफ द वर्क यू आर डूइंग, यू डेफिनेटली यू विल बाय अ लैंड फॉर दैट. अगर आप लैंड बाय नहीं करेंगे तो आप रेंट लैंड, है ना. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, वो लैंड जब हम एक बार ख़रीद लेते हैं तो दिस इज़ आर फिक्स्ड कैपिटल. एक बार हमारा खर्चा होगा और वो लैंड हमारी परमानेंटली हो जाएगी. मशीन्स, टूल्स, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल. इसमें हमें रोज़ डेली या बार बार खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है. वेन एवर एनी रिक्वायरमेंट इज़ देयर, बिकॉज मशीन्स डू रिक्वायर दी सर्विसेज एंड ऑल, कोई रिपेयरिंग की ज़रूरत उसमें हो जाती है, दैट इज़ टू बी डन. बट ऑब्वियसली दीज आर द फिक्स्ड एग्जाम कैपिटल. इनका जो है ये फिक्स्ड कैपिटल है. वर्किंग कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी प्रोडक्शन. वर्किंग कैपिटल जो है वो हर प्रोडक्शन के बाद उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है. फार्मर्स, दे whenever they do the harvesting, जब वो अपनी फसलों को काट लेते हैं एंड दे अगेन स्टार्ट देयर फार्मिंग, और दोबारा से जब किसी फसल को बोने होते हैं, उन्हें सीड्स लगाने होते हैं, सो अगेन दे हैव टू इन्वेस्ट द मनी, दे हैव टू बाय द सीड्स, मैनर, फर्टिलाइज़र्स, सब चीज़ें उन्हें बाय करनी होती हैं, तब उनकी दोबारा से क्रॉप की प्रोडक्शन होगी. दिस इज़ द वर्किंग कैपिटल. किसी भी आप किसी इंडस्ट्री के बारे में बात कर लीजिए, वी टॉक अबाउट एनी ऑफ द इंडस्ट्री, एनी ऑफ द पर्सन वुड, क्लॉथ इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो फॉर व्हाट, एक बार वो मार्केट से बाय करेगा कॉटन, देन इट विल मेक अ क्लॉथ इन द इंडस्ट्री, फिर उससे इंडस्ट्री में क्लॉथ बन जाएगा. एक प्रोडक्शन उसकी फिनिश होगी, दोबारा उसको मार्केट से कॉटन ख़रीदनी पड़ेगी. इट मीन्स अगेन ही हैज़ टू पे. लेकिन जो मशीन्स उसने ख़रीदी है वो उसने एक बार ख़रीदी. अब ऐसा तो नहीं है कि जब जब भी वो कॉटन के क्लॉथ्स बनाएगा वो दोबारा मशीन ख़रीदेगा. डोस ऐसा नहीं है. तो मशीन इज़ द फिक्स्ड कैपिटल एंड द कॉटन एंड द कॉटन क्लॉथ्स, दीज आर दी वर्किंग. ये कैसे हैं जिनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है. सो दैट इज़ वाई, ये रीज़न है. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड एंड द वर्किंग कैपिटल. एंड सो द कैपिटल इज़ टू important for us because without money we cannot do any of the thing, and without the human resource also we cannot do any of the thing. Human resource means we people, हम लोग, हम काम करने वाले. वी पीपल मेड ऑल दी थिंग्स फॉर आवर सेल्व्स. हम सभी चीज़ों को कोलैबोरेट करके अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उसको एक फाइनल गुड में बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? अपने लिए ही बनाते हैं कि हमें ही यूज़ करना है, हम अपनी नीड्स को कंप्लीट कर सकें, फुलफ़िल कर सकें, है ना. विदाउट ह्यूमन रिसोर्स नथिंग कैन बी डन. ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अ कंट्री. जैसे कंट्री में बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रीज़, प्लांट्स, गोल्ड, मिनरल्स, सो मैनी रिसोर्सेज आर देयर. लेकिन उन सभी रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होती है ह्यूमन रिसोर्स.
Human resource of a country is the most important resource because only the human knows how to use the other resources. हमारे पास जितनी भी दूसरी रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करना सिर्फ हमें आता है, ह्यूमंस को आता है। और जब अगर ह्यूमन ना हो तो वो सारी रिसोर्सेज यूज़लेस हैं, ऑल दोज आर वेस्ट, कुछ नहीं हो सकता उनका। यू थिंक अबाउट इट, इफ़ वी ह्यूमंस आर नॉट हेयर ऑन द वर्ल्ड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द लैंड? इस ज़मीन का क्या करेंगे, कौन करेगा? एनिमल्स आर नॉट गोइंग टू डू द क्रॉपिंग एंड एग्रीकल्चर ऑन दीज लैंड्स, they are not going to make the roads and shopping malls and bridges, transports, vehicle, क्यों बनाएंगे? कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई होगा ही नहीं। But when we humans are here, that is why we have made these resources useful for us. हम ही ने इन सारे resources को अपने लिए यूज़फुल बनाया है। That is why human resource is the most important resource, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। So finally these four resources are very important for the production of anything and for the services too. काम करने के लिए भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किसी चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इफ़ एनी ऑफ द थिंग इज़ लैकिंग है, अगर इसमें से किसी भी एक चीज़ की लैकिंग होती है, आप चारों को साथ में रखिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स, एंड ट्राई टू रिमूव एनी वन, किसी भी एक को रिमूव करने की कोशिश कीजिए। इफ़ वी रिमूव द लैंड, अगर हम ज़मीन हटा देते हैं तो क्या हम लैंड के बिना कोई भी प्रोडक्शन कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। सेकेंड वन इज़ द लेबर, लेबर को रिमूव करिए तो हमारे पास लैंड हो, हमारे पास कैपिटल हो, लेकिन हमारे पास काम करने के लिए लोग ना हो, लेबर ना हो, देन नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट डू इट। थर्ड वन इज़ द कैपिटल, इफ़ वी रिमूव द कैपिटल फ्रॉम हेयर, तो हमारे पास लैंड है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, मनी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ नहीं हो सकता, वी कांट डू इट। एंड ह्यूमन रिसोर्स, अगर हम इसको हटाते हैं तो लैंड, कैपिटल, लेबर तो बचेगा ही नहीं ना ह्यूमन रिसोर्स हटाने की वजह से, तो क्या बचेगा? सिर्फ लैंड बचेगी और कैपिटल बचेगा। पैसे का क्या करोगे और ज़मीन का क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई दीज ऑल दी फोर थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू डू द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द थिंग। किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए इन चार चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। That is why these are the four major factors of the production. And in Palampur, all these four things are available. वहाँ के लोगों के पास ये चारों चीज़ें अवेलेबल हैं। That is why the Palampur is a developed village. इसीलिए वो एक developed village है। There two types of activities, I told you that there in Palampur village people are involved in two types of activities, farm activities and non-farm activities. You know, farm activities we have studied, and we have studied the four factors for both of the activities. दोनों ही activities को करने के लिए हमें ये चारों factors की ज़रूरत है, and the remaining activity is the non-farm activity. Previously also I told you about it that the non-farm activity is all those economic activities except farming known as the non-farm activities. जहाँ वो कोई भी काम जिसमें हम फार्मिंग नहीं करते, मतलब फार्मिंग को आप छोड़ दीजिए और उसके अलावा जितने भी वर्किंग आपको पता हैं, आप जानते हैं, आपने देखे हैं, वो सब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आते हैं। एंड दीज नॉन फार्म एक्टिविटीज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड द मेजर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उन चार फैक्टर्स की ज़रूरत यहाँ भी पड़ती है। सी हेयर आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल लाइक शॉपकीपिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या हम किसी भी इंडस्ट्री को उन चारों फैक्टर्स के बिना रन कर सकते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स, नहीं कर सकते। तो फॉर एवरी ऑफ द प्रोडक्शन, किसी भी तरीके की प्रोडक्शन हो, ईदर इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर और इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द इंडस्ट्री और एनी ऑफ द थिंग, एनी ऑफ द सर्विसेज, these of the things are required. These four major factors are required. Without it we cannot do anything. Now the question comes here,
कि we have studied the whole scenario of the Palampur. We heard the story. I told you the story of Palampur, that Palampur is a developed village. Here the people are good. तो क्यों गुड हैं वो भी हमने सब कुछ पढ़ लिया. बट वाई वी स्टडीड दिस चैप्टर? जस्ट टू नो द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री. वी स्टडीड दिस चैप्टर टू नो द कंडीशन, क्योंकि अब हम पालमपुर की कंडीशंस को अपनी कंट्री की कंडीशंस के साथ में कंपेयर करेंगे. वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द इंडिया, विद द इंडियन रियल विलेजेस. ये एक इमेजनरी विलेज है पालमपुर, हम रियल विलेज से इसको कंपेयर करेंगे. डू द रियल विलेजेस ऑफ इंडिया हैव दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स? नो. पालमपुर क्यों डेवलप है? क्योंकि वहाँ पे ये सभी चीज़ें करी जाती हैं. इंडिया में इंडिया के विलेजेस क्यों डेवलप नहीं हैं? क्योंकि हमारे पास अभी इन चीज़ों की कमी है. वी आर lacking here, and if we want to develop our country we should make our villages just like the Palampur. उसकी जैसी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी. then our country is going to be developed and going to become more strong in economy. पैसे से, हर चीज़ से हमारा देश जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा. that is why India is lacking, Indian villages are lacking, and this is the conclusion of the chapter which I am telling you. कि इस chapter को पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा? What we have learned from this chapter? We learned that if we want to make any of the country develop, then we should go through these of the things. हमें इन सभी चीज़ों पर देखना चाहिए, वर्क करना चाहिए. then only any of the country, any of the village, any of the city is going to develop. जब इन चीज़ों पे वर्किंग होगी तब वो चीज़ें डेवलप होंगी. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हेयर, इफ़ वी डेवलप्ड आर प्रोडक्शन, जब हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, हमारी कंट्री, हमारे विलेजेस, हमारे स्टेट्स, districts, whatever, they automatically they will become the strong. हमारी कंट्री के लोग जो हैं वो अपने आप मजबूत होने लगेंगे because of the production. but so many things are to be done here yet. बहुत सारी चीज़ों पर हमें वर्किंग करना अभी भी बाकी है. देखो, लैंड, we have land but now we are not having. Earlier we were having most of the land, but now we are not having land because India is a very large and populated country. अब due to the population, land is required for everything, for house, for roads, for other things. अब forest भी चाहिए, trees भी चाहिए. So that is why we cannot take the more land now. अब हम ज़्यादा ज़मीनों का इस्तेमाल हर चीज़ के लिए नहीं कर पाते हैं. तो वट एवर वी आर हैविंग, हमारे पास जितनी लैंड है हमें उसी में ही अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है. लेबर्स हैं हमारी कंट्री में, क्यों? इतनी सारी पॉपुलेशन है. बट द प्रॉब्लम इज़ हेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनस्किल्ड. ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग हैं हमारी कंट्री में वो अनस्किल्ड है. हमें उन पर्सन को स्किल्ड करने की ज़रूरत है, उनको लिटरेट करने की ज़रूरत है, एजुकेशन प्रोवाइड कराने की, सो दैट दे कैन गिव दी गुड प्रोडक्शन टू अस, जिससे कि वो हमको एक अच्छी प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकें. और जब हमारी प्रोडक्शन अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री का कैपिटल, हर पर्सन का कैपिटल, हर पर्सन के पास में अच्छा अमाउंट अर्निंग को मिल जाएगा. अर्निंग भी होगी, उसको मिलेगा भी. एवरी वन विल गोइंग टू गेट द एम्प्लॉयमेंट. जब सबके पास काम करने के लिए हो जाएगा तो कैपिटल जो है हमारी कंट्री का वो अपने आप बढ़ जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी. ह्यूमन रिसोर्सेज वी आर हैविंग, बहुत सारी है. हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी हाई है, बट द अगेन सेम प्रॉब्लम दैट हेयर द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर unskilled, uneducated, and that is why we are lacking in the development. So if we want to increase it, then we should work on it. And here is the end of the story, end of the chapter. Also few of the questions I am giving you at the end, value based questions. What is green revolution? What are the drawbacks of green revolution? Define working capital, define human resource, what are the non-farm activities, give some examples and explain
any three of them. Here the chapter is finished, students, and you may give your feedback to me whether you have studied are able to understand it or not. If you feel any kind of problem, you can contact me any of the time. You are free for that, and I am always available for you people. So here the chapter is end, and thank you so much everyone.